each gas molecule of the gas is same as that of your total gas. Second point लिखे थे, molecular force of attractions are negligible as the energy of the gas is right now purely kinetic. On collision कौन सा होता है अपने पास, perfectly elastic collision होता है, तो change in momentum हो जाएगा 2mv into sin theta. ये minus n indicates that it is in the negative x-axis. Now pressure of the gas is not due to the mutual attraction of the molecules, but it is due to the rate of change of momentum of each molecule due to the impact with the wall of your container part of relation. तो ये हम लोग ने लिखे थे पहले के 4 points, right now 3 points लिखे थे. Yeah, 3 points we have written in this one. So let us try to go for the next one. Point number 4. The time of collision between हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे, चलो. The time of collision is negligible, यानी दो मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर जो कोलाइड होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो टाइम ऑफ कोलिजन है वो ऑलमोस्ट ऑल एज नेग्लिजिबल as compared to the time taken to cover the free path. यानी एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल है, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम और फिर यहां से यहां तक आने के जो टाइम है ना, इस टाइम से अगर हम लोग कंपेयर करें, the collision between any two gas molecules is almost all negligible. क्यों? क्योंकि एक कंटेनर के अंदर गैसें जब हम लोग भरते हैं एक्चुअली, so we almost all compress the gas molecules and try to fill it in that gas container. जैसा अपना एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर के अंदर अपने पास कैपेसिटी हो, लाइक से मान के चलो अगर 16 लीटर्स का कैपेसिटी है, तो हम लोग उसमें 15 लीटर्स का गैस भरते हैं. का कंडीशन क्या है, अगर टेम्परेचर कभी इंक्रीज भी हो जाए ना, तो वो 1 लीटर का जो गैप है ना वो फिलअप हो जाए, अब उससे ज्यादा नहीं होगा वो बेसिकली, ठीक है ना, अनलेस एंड अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज वेरी ड्रास्टिकली चेंजिंग. एक नॉर्मल टेम्परेचर में जितना हो सकता है उसका एक्सपेंशन के लिए हम लोग उतनी इसमें जगह छोड़ देते हैं, बेसिकली जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी हो, इस दिन आपने देखा होगा ऊपर थोड़ा पार्ट में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, बिकॉज गैस इज बीन फिल्ड इन दैट वन. सो द टाइम ऑफ द कोलिजन इज नेग्लिजिबल when we are comparing to what बेटा, टाइम टेकन टू कवर द फ्री पाथ, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक जो फ्री पाथ का टाइम कंपेयर कर रहे हैं, अगर इन दोनों का टाइम कंपेयर करें तो द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन these two gas molecules is always negligible. So the distance traveled by the molecules between any two consecutive collisions, के वेरी इंपॉर्टेंट, याद होगा किसी को, the distance traveled by the molecules, the distance traveled by the molecules between any two consecutive collisions is called क्या बेटा, free path. is called what, free path, है कि नहीं? क्या बोल रहा है, the distance traveled by the molecule between any two consecutive collisions, यानी मान के चलो अगर ये वॉल ऑफ कंटेनर है, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल यहां से गया, इसको हिट करा, फिर वापस आया, सो द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू, यानी यहां पर एक गैस मॉलिक्यूल है मान के चलो, इसको जाके हिट करके फिर वापस आके फिर अगर इसको हिट कर रहा है, सो दैट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू consecutive collision is called as of your free path, is called as of what beta for me, free path part of Free path. average distance covered by a molecule of a gas between any two successive collision is called as a free path, and that is represented by letter lambda, that is represented by your lambda part of a relation. That means I can say right now that whatever the path we are taking right now, the average distance between any two consecutive collisions the average, क्योंकि एवरेज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं बताओ जल्दी से, क्योंकि इसमें सब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे ना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट योर एवरेज पार्ट ऑफ रिलेशन. सो the average distance between two consecutive collision is called, क्या बोलो, is called as what, mean free path.
is called as what? Mean. Mean free path. तो mean free path और free path का difference क्या है? Free path is nothing but what? Distance of the consecutive collision between any two molecules, and it is for your average, यानी for n number of particles की अगर हम बात करें, then we'll be talking about your mean free path part of relation, and it is represented by your letter lambda. It is represented by your lambda, and it is given by the formula. Very important formula competitive examination के लिए. फ्री मेन पाथ एक्चुअली इंजीनियरिंग बच्चों के लिए हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं और उसमें 6-7 फॉर्मूले डिराइव भी करते हैं हम लोग, लेकिन मेडिकल के बच्चों के लिए वो जरूरत होती है. खाली आप लोग इसका रिलेशन याद रख लीजिए. लैम्डा इज इक्वल टू, याद है किसी को? इट इज 1 बाय, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग ने, अंडर रूट ऑफ योर पाई इनटू योर एन इनटू योर डी. तो एन को मैं यहाँ पर स्टार मार्क लगा रहा हूँ. तो एन स्टार मार्क क्या रिप्रेजेंट करेगा? एन इज नथिंग बट व्हाट हियर? नंबर ऑफ, it is number of your molecules. These are your number of your molecules per unit volume. Per unit volume. ये conversion बहुत ज्यादा important है बेटा. N is nothing but what बेटा? Number of molecules per your unit volume. And small d क्या है? Small d is what? Distance between the molecules. नहीं होता. Diameter. That is your diameter of the molecules. Diameter of the molecules. So lambda हो गया कितना मेरे पास? Lambda is equals to under root of your 2 root 2 pi into n into d. n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? Number of molecules per your unit volume. Number of molecules per your unit volume. और d represents the diameter of the molecule. अब n को न्यूमेरिकल में लिख के बताओ, कैसा बताएंगे? n is equals to number of molecules capital N डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहा हूं. ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना बेटा? या सो फॉर आइडियल गैस वी नो द रिलेशन एज पीवी इज इक्वल्स टू एन इनटू आर इनटू योर टी पार्ट डिफ्लेशन. तो मैं क्या वॉल्यूम लिख सकता हूं यहाँ पर? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एन इनटू आर इनटू टी डिवाइडेड बाय पी बोल के लिख सकता हूं कि नहीं? Yes sir. Isn't it? So now if I'm writing for your 1 mole of a gas right now, PV is equals to your N, where what is N represents? Can anyone tell me? N is nothing but what beta? N is equals to number of molecules capital N divided by your Avogadro number of molecules में लिख रहा हूं तो N क्या represent करेगा? N is representing me the number of molecules. N is representing me what? Number of molecules. ये very छोटी-छोटी चीजें हैं जो बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली ओवर लुक कर देते हैं बेसिक एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करके याद रखना है. स्मॉल एम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय योर एवोगाड्रो नंबर. एंड ये इज रिप्रेजेंटिंग मी फॉर मी योर एवोगाड्रोस नंबर. क्लियर है? तो या ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर एन स्टार मार्क डाल देके, इसलिए स्टार मार्क डाला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमिंग टॉपिक में भी रेगुलरली अपने को यूज होते रहता है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर योर यूनिट वॉल्यूम हो गया. यानी ये मैं इक्वेशन अगर लिख रहा हूं यहाँ पर देखो, तो ये कैसा बन गया? अभी देखो v इज इक्वल्स टू n के जगह मैं ये डाल लो रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई योर p इंटू योर एवोगाड्रो नंबर बन गया. इज इट क्लियर? Yes यहाँ पर n की वैल्यू कितनी बन गई? n इज इक्वल्स टू n बाई v ले लो इसमें से, यहाँ पर कैपिटल n है ना, तो इसमें से यहीं कन्वर्ट कर लेता हूं मैं. ये n इधर ले लो, ये v इधर चले जाएगा, तो ये p इंटू n इधर चले जाएगा, p इंटू एवोगाड्रो नंबर उधर चले जाएगा, और r इंटू टी इधर आ गया सभी को ये स्टेप कन्वर्शन. ठीक है ना बेटा? ये इधर आ गया, ये पूरा इधर चले गया, ये पूरा नीचे आ गया, तो n बाई v कितना आ गया बेटा? यहां से निकाल रहा हूं. n by v is equals to p into एवोगाड्रो नंबर by r into t. तो n by v क्या लिख सकता हूं मैं? इसमें भी लिख सकता हूं यहाँ पर p into n ये divided by r into t. ये एनसीईआरटी में भी बहुत ज्यादा डिटेल में दिया रखा है, तो बहुत ज्यादा थियरी इसकी भी है उसके अंदर, तो जरा पढ़ने की कोशिश पूरी करने की कोशिश करो बेसिकली. क्लियर है? yes. तो ये हो गया अपने पास व्हाट n क्या बोलते हैं बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला क्या है? p इंटू एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय r इंटू योर टी पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है फॉर एवरीथिंग? Yes, sir. Okay ना? So molecules will never exert the force on each other. They can exert the force only if they are colliding with the wall of the container. The total potential energy of an ideal gas is always how much beta?
टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस कभी भी Zero. क्या हो जाती है? जीरो. वेरी गुड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई कैन राइट हियर राइट नाउ. सो इंटरनल एनर्जी, और आई कैन से दैट potential energy of an ideal gas, potential energy of an ideal gas is always zero. क्यों? इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं रहते तो वो एक के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, लेकिन दे कैन एक्सर्ट द फोर्स ओनली इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. यानी द इंटरनल एनर्जी इज कंप्लीटली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? जो भी इंटरनल एनर्जी डेवलप हो रही है. वेरी गुड. द इंटरनल एनर्जी is completely in form of kinetic energy, in form of your kinetic energy of what? Gas molecules, of your gas molecules. ये छोटे छोटे चीजें थे जिसे हम लोग को याद रखना था, वो पूरे मैंने करवा दिया. फोर्थ पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. 102 बार इसको पढ़ो, पूरे पॉइंट्स क्लियरली दिमाग में रखो. एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्री पाथ, एंड हाउ डू यू राइट द एवरेज वैल्यू फॉर द गिवन कंडीशन. अगर एवरेज लिखना है तो जनरली कैसे लिखते हैं बेटा? यहाँ पर अगर मैं एवरेज लिख रहा हूँ तो रफली लिख दे रहा हूँ बेटा. यहाँ पर मैं और एक मार्कर से लिख देता हूँ. अगर रफली लिख रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो एवरेज भी लिख रहे हैं तो लैम्बडा इज नथिंग बट लेंथ ओनली ना. तो लेंथ एवरेज जैसे बाहर से लिख सकते हैं ना बेटा. So that will be equal to एक मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा? लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस सो ऑन अप टू योर लैम्बडा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय योर n कर लेंगे, डिवाइडेड बाय योर n कर लेंगे. है कि नहीं? Yes. Is that clear for everyone? Yes, sir. आ गया सभी को? Yes, sir. छोटे से कन्वर्शंस भी करा देता हूँ यहाँ पर. मॉलिक्यूल्स में अपने को ये फॉर्मूला मालूम है ना? कहाँ गया है? या PV is equals to n into Boltzmann's constant into K. ठीक है ना? Volume can also be taken as of your n into K into T divided by your P. ठीक है ना? For one molecule अगर हम लोग लिख रहे हैं, then this is the volume and this is for your n molecules. So small n क्या हो जाएगा बेटा? Small n is nothing but of your n by your v है. तो ये किसे लिख सकता हूँ मैं? n by v is nothing but of your p by your k into t लिख सकता हूँ. तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर पार्ट एफिलिएशन. कोई बता सकता है हाउ डू यू राइट द वैल्यू ऑफ योर लैम्बडा राइट नाउ? लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर k into your t डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ योर 2 पाई into your, ये कितना आ जाएगा बेटा? d into D your square. P. अच्छा. स्क्वायर है शायद ना? Yes, sir. स्क्वायर फॉर्मूला डी देखो एक बार, डी स्क्वायर है शायद ना. तो ऊपर वाला भी डी स्क्वायर लिखना है ना? एक बार चेक करो. D square. डी स्क्वायर है शायद ना. या दिस इज आल्सो डी स्क्वायर, सॉरी. दिस वन इज डी स्क्वायर. चलो, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू योर pk into t divided by under root of root 2 pi d square into your p part deflation. What is n beta? Number of molecules. K is what? Your Boltzmann's constant. T is what? Your temperature in your Kelvin. T is your Kelvin temperature. K is your Kelvin. T is your Kelvin temperature. और क्या है बेटा? K value is known as of your Boltzmann's constant. And P is obviously your pressure. P is always your pressure part deflation. तो इसमें से एक रिलेशन क्लियर है. लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया. कीपिंग द प्रेशर टू बी इक्वल टू योर कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकता हूं. एंड लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर प्रेशर, कीपिंग द टेम्परेचर टू बी आल्सो बी इक्वल टू योर कांस्टेंट. इन दोनों के ग्राफ मैं बता दूं तो जो बताओ जल्दी से, ग्राफ क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, और मीन फ्री पाथ वर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का पाथ. यानी ये हो गया लैम्बडा वर्सेस योर पी का ग्राफ. बताओ जल्दी से क्या होगा? Straight. इसके लिए तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. लैम्बडा वर्सेस टी का तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इस तरह से क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. That was about your given assumptions for your kinetic theory of your gases. Clear है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो बेटा जल्दी से. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट स्पीड्स ऑफ gas molecules. Different speeds of gas molecules. What are the different speeds of a gas molecules बेटा? एक VRMS. तो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड और एक है एवरेज स्पीड एंड थर्ड Average. वन इज अबाउट Most योर probable. मोस्ट प्रोबेबल Most Most probable. isn't it? The molecules of the gases are always random in motion बेटा. ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. So what is the motion of the gas molecules always? They are random motion. So the motion of the gas molecules can be expressed either in terms of your root mean square or average speed or maybe your most probable Mean. speed part of relation. अगर मैं first one में बात कर रहा हूँ, that one is about your root Mean square speed. square speed. Speed. मीन स्क्वायर स्पीड. ये सेकंड ईयर में भी एसी में भी आता है, आरएमएस करंट वगैरह बोल के, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेसिकली. सो इसको लिखते हैं हम लोग आरएमएस. आरएमएस. सो हाउ डू डिफाइन दिस वन बेटा? इट इज द स्क्वायर Root of square root of, sorry, it is mean the of squares. yeah, square root of Mean the of squares mean of square of the speed of the speed of different molecules. of all the molecules or different molecules, जो भी है. ठीक है ना? Yes, sir. So I can write here as VRMS VRMS equals to under root 2 of your, ये हो गया 3RT by velocities V1 square plus V2 square plus plus V3 square plus so on up V4 to square. your Yeah. Vn Vn square square divided by your n. N. Clear है? Yes. नंबर सेकंड वन, एवरेज स्पीड. जैसा एवरेज वेलोसिटीज वगैरह होता है ना काइनेमेटिक्स में, वही कंडीशन है एवरेज स्पीड पार्ट ऑफ रिलेशन. एवरेज स्पीड मतलब इट इज एन Arithmetic mean of अर्थमेटिक the मीन. speed. या इट इज द Arithmetic arithmetic mean of your speed. of molecules. arithmetic speed, arithmetic mean है ना, sorry, arithmetic mean of speeds of Of all molecule molecules in a gas at given temperature. yes, at a given temperature. ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है बेटा? V average VAV is equals to V1 plus V2 plus V3 so on up to your divided by Vn N. divided by your n. N. This will give me the average speed part of relation. Clear है? Yes, उसके sir. बाद third one, Most probable speed. Next one is your most probable speed. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. इसके फॉर्मूलेस हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी से याद रख लो. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMP भी लिख सकते हैं इसको बेसिकली. तो क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? The यानी speed possessed by possessed by- maximum number of Exactly. molecules. so it is a speed possessed by what? Maximum number of Maximum your number of molecules in a gas at constant temperature. It is the speed possessed By maximum number of maximum molecules number of molecules. Maximum number of molecules or particles बोल सकते हैं. ठीक है ना? तो that at is about your, constant temperature. हाँ, तो आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो कांस्टेंट ही रहेगा, Okay. तो कंडीशन नहीं है. तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए क्या है? स्पीड पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ योर पार्टिकल्स पार्ट ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज दिस वन. चलो छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे से. मान के चलो वी हैव गॉट द वेलोसिटीज ऑफ 10 particles, the velocities of 10 particles of a sample of gas in meter per second. In meter per second are 8, 1, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 7.
कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8 और एक ले लेते हैं 6 और 5, 10 हो गए। yes तो फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड, find your average speed. Number 2 RMS speed, and number 3 most probable speed. Most probable speed. चलो जल्दी जल्दी से आंसर्स बताओ, बहुत सिंपल कंडीशन है। फर्स्ट वन है मेरे पास एवरेज, सो एवरेज इज इक्वल्स टू कितना आएगा? सो इट इज 8 plus 1 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 7 plus 7 plus 6 plus 5 divided by ये कितने हैं पूरे? 1 2 3 10 है, तो डिवाइडेड बाय 10। 5.2 5.2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 कितना आ रहा है? 5.2 5 आ रहा सर। ये पूरा ऊपर का कितना है? मैंने ऐसे रफली ले लिया था ये वैल्यूज, पूरे 1 1 ले लिया हो जाता था, नहीं आराम से हो जाता था। ठीक है, जल्दी से बोले कि ऊपर का कितना है, पूरा ऐड कर लो। 5 आ रहा सर। पक्का लिख दो? 5 सर। 55 मीटर पर सेकेंड। नीचे नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी से। VRMS, VRMS इज इक्वल्स टू, अब ये कौन बताएगा देखेंगे। VRMS कैसा करोगे? स्क्वायर करना ना पहले, इट इज Yes, sir. योर 8 स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 1 स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 4 स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 4 स्क्वायर प्लस इसके बाद फिर 4 स्क्वायर प्लस उसके बाद फिर 4 स्क्वायर प्लस ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आई कांट डू इट राइट नाउ, दिस वन इज 7 स्क्वायर प्लस ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस ये हो गया मेरा 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर 10, डिवाइडेड बाय 10, और ये हो गया पूरा टू दी पावर ऑफ कितना? 1/2। ठीक है ना? तो ये हो गया कितना? 8 8 64, ये 16, ये 16, ये 16, 8 8 ये 64 प्लस ये 1, 8 8 इज नथिंग बट ये 16, ये हो गया फिर 16, ये हो गया फिर 16, ये हो गया फिर 16, फिर यहाँ पर क्या 7 7 49 प्लस ये हो गया 49 प्लस 6 6 36 प्लस ऑफ योर 25, तो कितना आ रहा देखोगे? 65 हो गया प्लस 16 10 20 30 40 6 34 60, ये कितना? 7 7 49, 49 plus 49 is nothing but 9 279/10 आ रहा सर। under root 28.8 288 by 10 आ रहा under मेरे root को 288 divided by by 10 to the 10 under power root of 1/2। 2 yes sir ठीक है, yes sir इसका वैल्यू कितना आ रहा अप्रोक्सीमेटली पर? ठीक है ना, वो देख लो एक बार फिर से। थर्ड वन वाला बताओ जल्दी से, कौन बताएगा? sir answer is 5 4 और third 6 वाला 4 पक्का? yes क्यों? यस क्योंकि number Not of repeat maximum हो- molecules है हाँ, तो इसके पास मैक्सिमम नंबर मॉलिक्यूल्स 4 ज्यादा है, तो V मॉलिक्यूल वेलोसिटी पोजेस्ड बाय, सो व्हाट इज दैट वन? वेलोसिटी पोजेस्ड, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके पास है? 4, सो आंसर विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? VMP विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया क्लियर सभी को? इज इट क्लियर? यस सर। So Yes, that sir. was तो that was second for वाला Yes, 1.69 आ रहा second वाला। yes sir I don't know 288 is आ रहा sir क्या बोले? 288 by 10 है ना तो स्क्वायर रूट का हाफ करना है ना अपने को तो 5 में आता 5 और 6 के बीच में हाँ 5 ही आएगा बेटा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल हाफ है ना, इसका रूट है ना, ये 5 Yes, पे sir. जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड के नजदीक नजदीक में आएगा। ठीक है, okay sir अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने जने बताएंगे। गलत किया ना सभी लोग, 50-50 उठ बैठ करना। 5 पार्टिकल्स, छोटा क्वेश्चन है। 5 particles have speeds 1, 2, 3, 4, 5 meter per second. The average velocity
the average velocity of particle is dash. First option is 3, second option is 0, third option 11. is 2.5, and fourth option is data is insufficient. Sir, first 3, option sir. 3. First option. 3, sir. Hello. बोलो 3. पक्का Oh. क्यों? क्लास में करा था। एवरेज वेलोसिटी है ना सर? हाँ तो v1 plus v2 plus v3 plus v4 plus v5 divided by n. 15 by 5. It's 3. पक्का Yes, sir. Sure. यस सर। सभी पक्का अरे पक्का पक्का अच्छा लो 50 रिपीट करो, वीडियो ऑन करके कई इसके को? बाद मैं आंसर बोलता हूँ। पक्का आपका आंसर रॉन्ग है, आप 5th क्लास नहीं पढ़े, कोई भी 5th क्लास नहीं पढ़े। आप बोलो हमने आंसर। पढ़े 5th क्लास नहीं, हमने बोले 5th क्लास। 5th क्लास कौन पढ़े बोल रहे थे आंसर? मैं बोला 5th क्लास में पढ़ के आंसर बोल रहा हूँ, सर बोला बच्चा हो कौन है, बोलो जल्दी से हो। हम तो नहीं पक्का ब्लंडर मिस्टेक आंसर है वो, ऐसे ही रहता ओवर कॉन्फिडेंस। सर स्पीड देकर वेलोसिटी क्यों पूछ रहे हैं? हाँ फिर सोचते नहीं, मैं दिया Data क्या हूँ insufficient. और पूछ रहा हूँ क्या एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालोगे आप 3? हाँ, डेटा इनसफिशिएंट। नहीं हाँ ऐसे चले जाता, मार्क्स बाजू वाला लेके चले जाता। मेरे को मालूम था गलती करते उनके दिया मैं वापस। आंसर इतना छोटा सा और बोल दिए थे, अटके नहीं अटके? कितना छोटा क्वेश्चन था, कल काइनेटिक थ्योरी में ऐसा क्वेश्चन आया था, पूरा हाथ उठा के आता यो बोल। क्लैरिटी आई? अब आंसर बताओ। डेटा इनसफिशिएंट। डाटा इज इनसफिशिएंट। Yes, sir. That ऑब्वियसली ना बेटा, क्योंकि आपको दिया उसने स्पीड और पूछ रहा आपको एवरेज वेलोसिटी, आप कैसे निकालोगे यार, समझ में नहीं आता है कि नहीं? अगर एवरेज स्पीड बोलता तो आपका आंसर 3 होता। यस सर। ठीक है ना? yes, sir. हाँ सर। चलो क्लियर है सभी को? सो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट वन बेटा, प्रेशर। अब इसका डेरिवेशन करना है क्या मुझे? सेकंड ईयर के बच्चे हैं शायद ना, सभी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। सेकंड ईयर ही ना पूरा, ये सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर भी है। अच्छा ये मॉर्निंग की क्लास है, नहीं सॉरी यार। एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, तो डेरिवेशन करना पड़ेगा फिर मेरे को। प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ योर कंटेनर, ये करे क्या अली सर? फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को अगर पढ़ा दिया तो मैं स्किप कर सकता हूँ ये। प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ योर कंटेनर, स्टेट्स ऑफ मैटर में करे होंगे ना? नहीं करे? डेरिवेशन नहीं करे सर। ठीक है चलो मैं करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये हो गया इस तरह से कंटेनर, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ये सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए तो ज्यादा यूज नहीं है, और एलटी के बच्चों के लिए तो खाली एप्लीकेशन यूज है बेसिकली, लेकिन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस एंड एज वेल एज ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी निकलते हैं इसमें, तो प्लीज लिटिल बिट अटेंटिव एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर। छोटा छोटा मैथ्स लगता है, आपसे ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली। तो हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं बेटा जिसके अंदर गैस फिला हुआ है। सो वी आर कंसीडरिंग ए गैस व्हिच इज बीन एनक्लोज्ड इन ए क्यूब ऑफ एज लेंथ, इसका मान के चलो वी आर टेकिंग इट एज ऑफ योर यल, इसका एज लेंथ है मेरे पास ऑफ योर यल, दिस एज लेंथ इज नथिंग बट ऑफ योर यल। क्यूब है तो पूरे साइड सेम रहेंगे, तो ये भी साइड इसका यल है और ये भी साइड इसका यल है। ये दिखने के लिए छोटा है लेकिन अंदर बड़ा है पूरा एज यूजुअल। ओके, या स्मॉल एल भी लिख सकते हो या कभी कभी कैपिटल भी लिख दो, तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो फ्लो में अगर स्मॉल एल कैपिटल है तो समझ जाना दैट इज द लेंथ ऑफ योर cube whatever we are doing. So what we are doing, we are considering your n number of your gas molecules in this container, in your this one n number पूरा भरा हुआ है basically. Let m will be the mass of your each. मैं मान के चल रहा हूँ एक गैस मॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, से मान के चलो mass of your gas molecule is a typical gas molecule ले रहा हूँ basically. So this gas molecule is trying to go in this direction. Wall of this container, इस wall पे यहाँ पर कहीं पर hit कर रहा है basically, इस पे यहाँ पर hit कर रहा है basically. तो इसकी velocity हो जाएगी vx. ये फिर यहाँ से टर्न करके फिर वापस आ रहा है बेसिकली, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगी माइनस ऑफ योर vx. ठीक है ना? यस सर. Isn't it? अगर ये x एंड y प्लेन में है तो ये कंडीशन है. तो क्या पार्टिकल खाली x में ही जाएगा क्या? गैस इज राइट नाउ फ्री टू मूव इन द कंटेनर, so this will be having both x coordinate, y coordinate and z coordinate because it is right now free to move. So this gas molecule whatever we are taking, that will be having the velocity in x coordinate, y coordinate and z coordinate. मैंने ये तो यहाँ पर सिर्फ एक ही निकाला था, लेकिन इसके लिए y भी होगा और इसके लिए z भी होगा, क्योंकि like a kite. If I am taking the kite motion in the air is right now what? It is having both x axis, y axis और z axis, तीनों डायरेक्शन में simultaneously move करेगा. Like a bird flying in the sky is also having the 3 dimensions right now. It can move in x axis, y axis, z axis simultaneously. उसी तरह से इस गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, तो दिस गैस मॉलिक्यूल इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन x axis, y axis एंड z axis. लेकिन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया खाली x axis, आपको समझना है y में भी रहेगा, z में भी रहेगा. So that means its velocity v will be equal to how much for me? Its velocity v will be along your vx, its velocity will be along vy, and its velocity will be along your vz part of relation. Now tell me, if I'm talking about this gas molecule, what is the change in momentum in this one when it is being hitting the container part of relation? So for the gas molecule, for mass m, theory आप लोग अपनी मेटेरियल से पढ़ लो बेटा. For mass m, change in momentum कितना होगा? Delta p is equals to minus of your m into your vx minus m into your vx. P final minus p initial लिखोगे ना, so that is equals to minus of your 2m into your vx part of relation. Now time for collision बताओ. यहाँ से जाके इसको हिट किया, फिर वापस आया, तो कितना लेंथ ट्रैवल करा उसने? कितना लेंथ ट्रैवल करा? मान के चलो ये पूरा ट्रैवल कर रहा है, यहां से यहां तक पूरा लेंथ है. ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर से यहां से जा रहा है बेसिकली, फिर वहां से जाके फिर वापस यहां तक. L. टोटल लेंथ कितना ट्रैवल कर रहा है? 2l. L. Isn't it? So the time for your next collision with the same speed will be equal to how much better? Time of your collision. So delta t मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, delta t is equals to your how much for me? 2l divided by your vx. Then what is the force on the container? Can anyone tell me? Force on the wall of container. Force on the wall of the container. Fx लिख रहा हूं, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोग को मालूम है डेल्टा p by your delta t is your न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ योर मोमेंटम. तो डेल्टा p की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? माइनस ऑफ योर 2m into your vx. माइनस इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, नथिंग टू डू विद द कैलकुलेशन फॉर मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय डेल्टा t. डेल्टा t इज नथिंग बट व्हाट? 2l डिवाइडेड बाय योर vx. इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ये vx ऊपर चले जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा अलोंग x एक्सिस. कितना है बेटा? फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू योर m into vx. अगर ऊपर चले गया तो ये हो गया मेरे पास vx स्क्वायर डिवाइडेड बाय योर l. आ गया? या माइनस साइन मैंने नहीं लिया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. माइनस साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन पार्ट ऑफ रिलेशन. ये कितने मॉलिक्यूल के लिए लिखा है मैंने? एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा. तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे मेरे पास? n number of molecules. So n net force I can write now here. Net force on the wall due to all molecules. कितना होगा कोई बता सकता है? F net will be equal to, कैपिटल F से लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल F is equals to m into vx 1 square divided by your l plus m into your vx 2 square divided by your l plus 1 ऐसे चले जाएगा, m into your vx into your n whole square divided by your l. देख सकता हूँ ऐसा? तो इसमें से मैं n number of your particles अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ बेसिकली, तो it is nothing but of your n into your m divided by your l कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना?
Vx1 square plus of your Vx2 square plus of your so on up to your Vxn square divided by your कितना divided by your n. ठीक है, क्योंकि मैंने n से डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर लिया बेसिकली। यहाँ क्लियर है सभी को? यहाँ तक इज इट क्लियर? खाली m by l भी बाहर निकाल सकते थे, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए बात कर रहे थे ना हम लोग। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर योर n नंबर ऑफ योर पार्टिकल्स राइट नाउ, तो ये हो गया मेरे पास n नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स के लिए, या आप लोग कैप्लियन से भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बेसिकली। यहाँ पे मैंने कैप्लियन पार्टिफिलेशन क्लियर है सभी को? ये कैप्लियन से भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। n इंटू m क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? यहाँ पर n इंटू योर m क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई बताओ? टोटल मास ऑफ गैस। Mass. So n into your m is equals to what? Total mass of gas molecule. Gas. Total mass of your gas molecule. ठीक है ना? So that is of your total gas molecule. Clear है सभी को? Yes, sir. Yes. Okay. Now I got right now what? Force. Now can I tell me the pressure right now? Pressure acting along x-axis will be equal to how much right now? So now for number of molecules we got right now. Force is equals to F is equals to N into your M divided by your L into ये हो जाएगा मेरे पास कितना Vx to the power of your minus square हो जाएगा बेसिकली। N number of your particles ले रहा ना, स्क्वायर पार्टिफिलेशन एक मॉलिक्यूल के लिए अगर ले रहा हूँ तो बेसिकली। तो अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? फोर्स निकाल रहा हूँ तो फोर्स हो गया ये। प्रेशर निकालो एक मॉलिक्यूल के लिए, प्रेशर along x axis कितना हो Force per जाएगा? unit area. Ex is equals to force by area, that is Fx by your area. So ये हो गया force along your x axis. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बेसिकली कितना? Fx by your area can be written as of your L square, लिख सकता हूँ मैं ऐसा। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा? Pressure along your x axis will be equal to your N into your M divided by L into L, ये हो गया L cube into ये हो गया Vx1 square plus of your Vx2 square plus so on up to your Vx into your n square divided by your n। आ गया सभी को यहाँ तक? L cube Yes, कैसे लिख sir. सकते हो? L cube can Volume. Volume. I can write it this one as of your volume. L cube is nothing but equal to your volume. L cube is nothing but equal to your volume. N into your m is nothing but total mass of your gas. और ये जो वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं बेसिकली n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, ये कैसे लिख सकता हूं, कोई बता सकता है? Vx1 square plus Vx2 square plus Vx2 square by your n can be written as of your VRMS square. Yes, sir. VRMS square हम लोग ने डिफाइन किया था इससे पहले ही। Vx1 square plus your Vx2 square plus of your so on up to your Vx of your n square divided by your n will be called as of your VRMS square. यानी finally I can write pressure along your x-axis is equals to your, this is nothing but of your n into small m divided by your L cube into this one will become for me how much beta? VRMS square. Along which axis? Along your x-axis. तो क्या सिमिलरली मेरे पास y एक्सिस भी आएगा? Yes. सिमिलरली y एक्सिस के लिए मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, आई कैन डायरेक्टली राइट हियर py is equals to your n into your m divided by your L cube into your VRMS square along y axis. उसी तरह से z एक्सिस पे pz is equals to your n into your m divided by L cube into your VRMS into your square. ये स्मॉल एन या कैपिटल लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, अपने को समझने पे डिपेंड करता है बेसिकली। कोई बुक्स में कैपिटल भी लिख लेता है, तो आपको समझना है कि कैपिटल इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स। तो n into m will give me the total mass of your gas particulation. क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो I can say that as the gas molecule is simultaneously moving in the closed container, similarly the pressure acting on this one, everything I got right now, due to randomness of your gases, I can say that VRMS velocity along your x-axis, VRMS velocity along your x-axis will be equal to your VRMS velocity of your molecules along y-axis will be equal to VRMS velocity of your axis along your z-axis. तीनों की भी velocity same रहेगी, isn't it? अगर तीनों की velocity same रही तो क्या प्रेशर भी सेम रह जाएगा?
So pressure acting on the particle, pressure acting on the wall of the container, Px will be equal to Py will be equal to your Pz will be equal to your P, where P is nothing but what beta? Total pressure. P is nothing but what beta? Total pressure exerted with gas molecule on the container. container. P in terms of VRMS क्या करोगे बेटा? टोटल प्रेशर कितना आ रहा बता? 3P लिख सकता हूं मैं. टोटल प्रेशर. Yes, sir. Total pressure will be equal to your Px will be, this will be equal to how much for me? Px plus of your Py plus Pz. PZ. ठीक है ना? तो यहाँ पर हो गया 3P is equals to Px कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर? N into your M divided by your L cube into, ये हो गया मेरे पास of your VRMS square along your x axis plus ये हो गया VRMS square along y axis plus VRMS along your z axis. Z axis. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो राइट नाउ यहाँ से P क्यू अगर यहाँ पर नीचे ला लूं तो दिस विल बिकम फॉर मी प्रेशर P इज इक्वल्स टू, या 3P विल बी इक्वल टू दिस 3P इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरे पास N into your M डिवाइडेड बाय योर L क्यूब. ये पूरा कैसे लिख सकता हूँ मैं? VRMS लिख सकता हूँ. सो दिस वन इज योर VRMS into your स्क्वायर. तो प्रेशर बन गया मेरे पास कितना? P इज इक्वल्स टू योर 1/3 into your N into small m divided by your L cube into your VRMS square. हुआ कि नहीं हुआ? Yes. Now can anyone tell me what is this N into M by your L cube? N into M is what beta? Density of a gas. Very good. This total will be density of your gas because N into M is nothing but what beta? Mass. Total mass. Mass by total volume will Volume. obviously be the density. So I can write here because N into your M divided by L cube will be what beta? Density of your gas. Density of your gas represented by letter rho. तो क्या मैं इसको पूरा रो से रिप्रेजेंट करूं? तो Yes, P sir. में लिखा होगा P is 1/3 1/3 rho Rho into VRMS square. square. तो ये अपना ब्रह्मास्त्र है for doing the questions in the kinetic theory of your gases. P is 1/3 rho into VRMS square part of your relation. तो VRMS का फॉर्मूला निकालो, इसमें से कितना निकलेगा? VRMS will be equal to under root of ये 3P इधर चले गया, so this one is a 3P divided by your rho. So this is your VRMS velocity formula. So VRMS is equals to under root of your 3P by your rho. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको different forms में लिख लेते हैं जल्दी से. Now using the relation, अब मैंने already एक आइडियल गैस में लिखाया था मैंने, P into your M मास के लिए लिख रहा हूं तो rho into R into capital T लिख सकता हूं for ideal gas. याद है? For ideal gas PM, capital M is nothing but molecular mass. Yes, sir. Capital M is what? Molecular mass. Molar mass of gas. ठीक है? P by rho क्या हो जाएगा? कोई बता सकता है क्या? P by rho will be equal to R into T divided by your capital M. तो क्या मैं VRMS को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या अभी right now? VRMS is also equal to under root of your 3R into T divided by your capital M. So this is your VRMS. Clear है? Yes, sir. ये अपने को और एक भी एक चीज आइडिया है. Since R by NA is known as क्या? 4 मिनट क्या? R by NA क्या है? Boltzmann's constant. Boltzmann's constant, capital K. R क्या है? Universal gas constant. NA is your Avogadro's Avogadro number. तो मैं इधर इसमें लिख रहा हूँ. Small m क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? Small m is equals to mass by your Avogadro number, where m is nothing but what? Mass of your each molecule. M is nothing but what? Mass of your each molecule. अगर मैं लिख रहा हूँ mass of your each molecule होना है तो M is equals to molar mass divided by your Avogadro number लिख लो. तो मेरे को अभी VRMS वैल्यू किस फॉर्म में आ जाएगा? देखो VRMS आ गया मेरे पास. VRMS is equals to under root of your 3R into T divided by your capital M, that is equals to under root of your 3 into R को मैं अब Avogadro नंबर से डिवाइड कर रहा हूं into T divided by
m by your, यहाँ पर भी अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको भी डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि खाली इसको डिवाइड करके इसको नहीं करता, तो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा वो, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिफाइन किया बेसिकली। सो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर विल गिव मी द मास ऑफ योर ईच मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कितना बन जाएगा अभी जल्दी से बताओ। VRMS हो गया, VRMS is equals to under root of, this will be equal to 3 R by N, ये क्या बनेगा, कैपिटल K कैपिटल T divided by small m. What is the small m? What is the small m? Mass of each molecule. Molecule, mass of your each molecule, mass of your each molecule part of relation. Clear है सभी को? Is it clear? Yes, sir. Yes. देखो खाली एक रिलेशन अपने को इसमें हो गए बेसिकली। तो अल्टीमेटली एक बार समरी बता दो पूरे की हम लोग ने क्या किए, अपने को याद रखना क्या है, VRMS is equals to under root of your 3p by your rho, that is equals to under root of your 3 into capital R capital T divided by molecular weight or molar mass, that is equals to under root divided by 3 into capital R capital T divided, sorry capital K में लिखना है ना, Boltzmann's constant. So this will be equal to your capital K in capital T divided by your m. What is the small m? Small m is Mass nothing of each molecule. Molecule. but each molecule, that अपने को याद रखना है basically. Clear है? Yes. Yes, sir. Last part of this one, मेरे क्लास का भी टाइम हो रहा है बेटा, कॉलेज से भी फोन आ रहा है। Average translational kinetic energy. Average translational kinetic energy, very important for your competitive examination. Number 1 जल्दी से बताओ, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस अगर मैं बात कर रहा हूं, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस के लिए बात कर रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे, हाफ इंटू m इंटू RMS स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास हाफ इंटू m, RMS स्क्वायर है 3 इंटू K इंटू T, मॉलिक्यूल में लिख रहा हूँ ना तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय योर m इंटू योर होल स्क्वायर, तो चलेगा क्योंकि मैंने रूट निकाल दिया। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 3 इंटू K इंटू T divided by 2. This is very important formula. Average translational kinetic energy per molecule of a gas is equals to how much for me, 3 by 2 times of your KT. KT. Depends on what beta, temperature of gas. I can say that it depends on temperature. It depends on temperature, but not on nature of gas, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इस खाली स्टेटमेंट में बेटा, नेचर ऑफ योर गैस, कभी कभी गैसेस देखिए टेम्परेचर नहीं दिया सर का, ही विल बी आस्किंग द कंपैरिजन ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी, जब थोड़ा आप लोग को दिमाग में लगाना, यानी एक गिवन टेम्परेचर, मान के चलो आप लोग का थोड़ा केमिस्ट्री चेक कर लेता हूं, यहाँ पर देखो, मान के चलो अगर इट ए गिवन टेम्परेचर है मेरे पास, मान के चलो टेम्परेचर कैपिटल T है, काइनेटिक एनर्जी per molecule, try to understand the terminology of this one, kinetic energy per molecule of a gas will be dash for different gases, Same. different gases. Same. Example, मान के चलो मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, या मान के चलो मैं हीलियम ले रहा हूं, या मान के चलो मैं नाइट्रोजन ले रहा हूं, एनीथिंग, एनी गैस ले रहा हूं, तो आंसर क्या भरोगे इसके अंदर, Same. same. So at a given temperature, kinetic energy per molecule of a gas will be same for your different gases because it is independent of your nature of your gas. It depends only on what beta, temperature of your gas. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट अभी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग तो पहले हम लोग ने पर मॉलिक्यूल के लिए पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पर मोल ऑफ गैस। पर मोल ऑफ गैस के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल M इंटू VRMS इंटू योर स्क्वायर। तो ये हो गया कैफ इंटू कैपिटल M इंटू, ये हो गया मेरे पास 3R इंटू कैपिटल T डिवाइडेड बाई कैपिटल M। आ गया सभी को, M कट जाएगा तो ये बन गया 3/2 टाइम्स ऑफ R इंटू T हो गया। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी per mole of your gas, kinetic energy per mole of your gas. So this also depends on what beta,
This Temperature. also depends on what? Temperature. It depends upon what? Depends only on temperature of gas. Again, not on the Nature nature of of the your gas. gas. So I can say that it depends on temperature of gas, but not on nature of gas, your gas. Okay. And third one and last one is per unit volume. क्या per unit volume? एवरेज सबके लिए मैंने को स्टेटमेंट कॉमन है बेटा, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी K विल बी इक्वल टू हाफ इनटू कितना मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी V इनटू RMS स्क्वायर. Rho. Yeah, so this will be equal to half into rho. VRMS square will be 3p by your rho whole square. So ये हो गया 3b by 3/2 times of your p. So this is the another relation which you need to remember. So these are the some of the three important relations which you need to remember for your competitive examination. So यहाँ पर हो गया K is equals to under root of your 3k into T in terms of your molecules. अगर मोल में लिख रहे हैं तो कैपिलर से रिप्रेजेंट करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो प्रेशर में रिप्रेजेंट कर लेंगे. Is that clear for everyone? Yes, sir. So tomorrow in the session of the class, we'll try to start with your Maxwell's distribution of your speeds, उसके graphs basically, and effect of your temperature, molecular masses और RMS velocities के comparisons भी हम लोग कल कर लेंगे. I hope already you had done that one in the chemistry. Degree of freedoms वगैरह के हिसाब से specific heats के degrees of freedoms वगैरह कैसे निकालना है वो कल की क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे. ठीक है, चलो take care Yes, बेटा. Thank Thank you, you, sir. sir. Bye बेटा. Thank you, sir. Sorry, sir. काय को? हम भी wrong answer दिए थे इसका. Very good. Bye. Bye. Thank you, sir.